فارم کے ہمارے پاس وہ چہرے ہیں جو الحمدللہ پروفیشنل ہیں اور الحمدللہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور ڈی اے خان کی عوام کے ایشو کے حوالے سے کسی بھی مسائل کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. تمام چیزیں جو ہیں ہم نے ختم کر دی ہیں, نئی شروعات کر دی ہے. ویلکم بھی آپ کو کہتے ہیں دل سے, اور نئی شروعات سے نئے آغاز کریں گے. لیکن اعلان کرتا ہوں ڈی اے خان کی عوام کے لیے کہ آپ نے کبھی بھی اس اسٹیج سے یہ میسج کنوے نہیں کرنا کہ ہم شاید کمپرومائز ہو گئے ہیں یا کچھ ہو رہے ہو گئے. کوئی کمپرومائز نہیں ہے. انشاءاللہ ڈبل آپ کے ساتھ اسی طریقے سے ٹھہریں گے. جہاں پہ بھی ایشوز ہوں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے اجاگر کریں گے. 8-9 سال پہلے جو خواب ہم نے دیکھا تھا وہ آج اسٹیج پہ لگا. عادل بھائی, چونکہ اب آپ ایک انٹرفیس بن گئے ہیں ان بٹوین پبلک اینڈ دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. آپ نے صرف پبلک کے مسائل مجھ تک پہنچانے نہیں ہیں, آپ نے ہماری ایکسپیکٹیشن بھی پبلک تک پہنچانی ہے. یہ ڈوئل ہوگا. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا کہ آج جو ایک بنیاد رکھی گئی ہے ڈی خان کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کلب کی, اس کا باقاعدہ ایک الیکشن کر کے ایک ان کی باقاعدہ ایک اپنا ایک باڈی بن گئی ہے. وہ کوئی بھی چیز آگے نہ بڑھتی ہے نہ اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی کام کرے اس کا معاوضہ لے. صحافی کام کرے معاوضہ لے کے اپنے لفافہ آئیں. ہاں, اگر کوئی بلیک میلنگ کر رہا ہے اس کے لیے ایک علیحدہ بات ہے. اگر ایک بندہ صحافت کر رہا ہے تو اس کے اپنا جان کو چلانا ہے. پلیٹ فارم سے جہاں پہ بھی عوامی بجٹ لگ رہا ہے, جو عوام کے لیے مختص کیا گیا ہے وہ عوام کے اوپر ہی لگنا چاہیے. ہم نے ہمیشہ تنقید پر آئے اصلاح کی ہے اور نہ کہ تنقید برائے تنقید کی ہے. ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے ہمارے پاس وہ چہرے ہیں جو الحمدللہ پروفیشنل ہیں اور الحمدللہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور ڈی اے خان کی عوام کے ایشو کے حوالے سے کسی بھی مسائل کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. اگر ہم کسی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں اس کے اوپر اسٹرکٹلی ایکشن ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی بھی ٹھیکیدار میں کسی میں مجال نہ ہو کہ وہ غلط کام کرے اور اس کے اوپر جو ہے ہم کچھ بنائیں. تمام چیزیں جو ہیں ہم نے ختم کر دی ہیں, نئی شروعات کر دی ہے. ویلکم بھی آپ کو کہتے ہیں دل سے, اور نئی شروعات سے نئے آغاز کریں گے. لیکن اعلان کرتا ہوں ڈی اے خان کی عوام کے لیے کہ آپ نے کبھی بھی اس اسٹیج سے یہ میسج کنوے نہیں کرنا کہ ہم شاید کمپرومائز ہو گئے ہیں یا کچھ ہو رہے ہو گئے. کوئی کمپرومائز نہیں ہے. انشاءاللہ ڈبل آپ کے ساتھ اسی طریقے سے ٹھہریں گے. جہاں پہ بھی ایشوز ہوں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے اجاگر کریں گے. مسائل بھلے چھوٹے ہوں لیکن خواب کبھی چھوٹے نہیں. 8-9 سال پہلے جو خواب ہم نے دیکھا تھا وہ آج اسٹیج پہ لگا. صرف اپنے آپ کی شناخت کے لیے ہم لوگوں نے کوشش کی, اگرچہ کہ اس دوران بہت سی مشکلات بھی آئیں, بہت سے اپنے حساب سے جو ہیں وہ بیریئرز بنے, لیکن وہ جب تک آپ کسی فیلئر کا, کسی ناکامی کا مزہ نہیں چکھتے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کامیابی کیا چیز ہے. ڈیجیٹل میڈیا کلب انشاءاللہ پھلے گا, پھولے گا. یہ اس کا پہلا قدم ہے, بھلے چھوٹا ہی صحیح. نظر آنے والے کو یہ چھوٹا لگ رہا ہوگا لیکن جو اس کے ثمرات آئیں گے, جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ تاریخ کا حصہ بنے گا. بھلے لوگ دعوے کرتے رہے ہیں کہ تاریخی تاریخی تاریخی, لیکن جب آپ آج کی حل برداری کریں گے تو آپ تاریخ بنائیں گے. سب سے پہلے تو میں ڈیجیٹل میڈیا کلب کے جو عہدیداران ہیں جنہوں نے ابھی حلف لیا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک میسج یا ایک چھوٹی سی سجیشن کہ پہلے تو آپ کے اوپر ذمہ داری تھی ہی معاشرے کی سدھار کی, معاشرے کی اصلاح کی, لیکن اب یہ ذمہ داری قانونی ضمن میں آپ کے اوپر فرض ہو گئی. عادل بھائی, چونکہ اب آپ ایک انٹرفیس بن گئے ہیں ان بٹوین پبلک اینڈ دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. آپ نے صرف پبلک کے مسائل مجھ تک پہنچانے نہیں ہیں, آپ نے ہماری ایکسپیکٹیشن بھی پبلک تک پہنچانی ہے. یہ ڈوئل ہوگا. میڈیا کے علاوہ بھی آپ ہمارے آفسز میں آئیں, آپ ڈائریکٹ اپنے مسائل ہمارے سامنے رکھیں. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا مسئلہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہا کسی بھی وجہ سے, تو آپ میڈیا کا ایز اے میڈیم اس کو استعمال کریں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا کہ آج جو ایک بنیاد رکھی گئی ہے ڈی خان کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کلب کی, اس کا باقاعدہ ایک الیکشن کر کے ایک ان کی باقاعدہ ایک اپنا ایک باڈی بن گئی ہے. وہ کوئی بھی چیز آگے تب بڑھتی ہے نہ اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے. تو مجھے یقین ہے اور میری دعا ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے لی ہے اس ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی کام کرے اس کا معاوضہ لے. صحافی کام کرے معاوضہ لے کے اپنے لفافہ آئیں گے.
हाँ, अगर कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है उसके लिए एक अलग बात है। अगर एक बंदा आपकी हिफाजत कर रहा है तो उसे अपना घर को चलाना है। अपने बड़े मकसद को सोचने के बाद, उसकी तरफ बढ़ने के बाद आप छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होंगे, छोटी छोटी चीजों में उलझेंगे, आप कभी भी अपने मकसद पे नहीं पहुंच सकते। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ी सोच, बड़ा मकसद और बड़ा मकसद हासिल करने के लिए अगर आप छोटी छोटी चीजों में उलझेंगे तो आप वहां तक या तो पहुंचेंगे नहीं, और अगर पहुंचेंगे भी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा आपको। मुझे वो टाइम से लोग दुआ करते हैं हमेशा, वो ये कहते हैं हमने वज़ीर आला नहीं बना था, मैं जाके वज़ीर नहीं बना, मुझे लोग कहते थे गलत होगा, वज़ीर आला बना दी। तो मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं, वज़ीर आला के लिए इमरान खान के लिए दुआ करो, वज़ीर आला का इमरान खान अदा। कोई ओहदे की कुर्सी किसी इंसान की वजह से ऊपर या नीचे होती है। और आज आप देख रहे हैं इमरान खान जेल में है, इस वक्त कोई कैदी है, आज वो कैदी होकर इस वक्त मुल्क का पॉपुलर तरीन शख्स है, पूरा मुल्क उसके लिए दुआ करता है, उसके साथ खड़ा है, वो जो कुर्सी पे बैठा है उसकी हालत भी आप देख रहे हैं। तो कोई कुर्सी जो है ना वो किसी इंसान को बड़ा आदमी नहीं बनाती, इंसान किसी भी कुर्सी होने को बड़ा बनाता है। तो जिस जगह पर भी, जिस लेवल पे भी आप काम कर रहे हैं, खुदा के लिए उस पे ऐसा काम करें कि कल आपको लोग याद करें, चाहे वो छोटे से छोटा है या बड़े से बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ हमेशा से यही रही है कि मैं अपनी आवाम से राब्ते में होता हूँ। ग्रास रूट लेवल पे मुझे पता है कि लोगों के मसाइल क्या हैं। डी खान के 176 ग्रुप्स हैं जिन सब के अंदर मैं मौजूद हूँ। मैं उनमें बात नहीं करता, कभी कभी कर भी लेता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस्लाह करना, समझाना, बात करना फ़र्ज है। कोई समझे ना समझे, एटलीस्ट अल्लाह ताला को आप ये कह सकते हैं कि मैं सही समझ रहा था, मैंने आपके लोगों को बताया, उसने अमल किया नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन मैं उनको फॉलो जरूर कर रहा होता हूँ, मैं उन्हें देख जरूर रहा होता हूँ। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एक हल्का अगर है तो इंशाल्लाह उसमें डी खान सिटी भी उन हल्कों में आता है कि जिसके अंदर हर तरह की वो सहूलियात के ऊपर इन पिछले 12 सालों में इतना काम हुआ है कि शायद कहीं पर भी ना हुआ। हर कॉलेज में, अस्पताल में, BHU में, रोड पे, गली पे, ट्रांसफार्मर पे, हर नकासी पे, हर चौक पे, हर पार्क पे, हर ग्राउंड पे आपको नजर आएगा कि हमने उसको पीछे नहीं छोड़ा, हमने पूरी कोशिश और मेहनत की है कि हम उसको डेवलप करें। रोजगार के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जितना रोजगार डी खान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाया गया है, मैं चैलेंज करता हूँ कोई नहीं ला सकता। रोजगार लाने के लिए कोई ना कोई चीज बनानी पड़ेगी। उन्हीं महकमों में मजीद लोग भर्ती करके, एक्स्ट्रा लोग भर्ती करके आप सूबे को भी तबाह कर रहे हैं, मुल्क को भी तबाह कर रहे हैं। मेरे किसी काम के अंदर किसी भी सूरत में, किसी तरह की किसी क्वालिटी पे अगर कोई भी कंप्रोमाइज कर रहा है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं अपनी आवाम के साथ हूँ। कभी हम कहते हैं डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर रहा, कभी हम कहते हैं TMA वाले अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, कभी हम कहते हैं वासा वाले सफाई नहीं कर रहे। इसी साहब तो चलो बाहर से आए हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर भी बाहर से आता है, DPO DIG भी बाहर से आता है। ये बाकी लोग यहीं के हमारी ही मट्टी के पैदा करते हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे घर में से हैं, ये बाहर के लोग नहीं है। तो मेरी हमेशा से यही रही है कि जो मेरे ताल्लुक पर आदमी हो तो मैं इनसे कहता हूँ कि उसको डबल डंडा दो, क्योंकि वो तो डबल ज्यादती कर रहा है कि मेरा वाकिफ है और मुझे खराब कर रहा है। मैं नुमाइंदा बन गया तो फिर मैं हर एक शख्स का नुमाइंदा हूँ, जिसने मुझे वोट दिया, जिसने मुझे वोट नहीं दिया। तो अगर मैं इस चीज पे आ गया कि इस गली में वोट नहीं मिला और ये गली ना बनाओ, और उस गली में वोट मिला और उस गली को बनाओ, तो ये मेरे ख्याल में वो जो कहते हैं ना कि इंसाफ, इस्लाम में इंसाफ की बात हम करते हैं हर वक्त। मैं अदल का कायल हूँ। इंसाफ क्या है? इंसाफ तो नौकरी आ गई, यहाँ पे सारे लोग बैठे, मैं कुरानदानी डाल दूं तो उसमें शायद ऐसे बंदे की निकल आए जो घर में खुद 4 नौकर लेके बैठा हो। अदल ये है कि मैं एक हकदार को दूंगा, ये इंसाफ तो आपको नजर आएगा कि जी इंसाफ कर दिया कि जी बस ठीक है, यहाँ कुरानदानी हो गई। अदल ये है कि मैं उसमें ये देखूंगा कि जरूरत कौन, मन ज्यादा कौन है, किसको ज्यादा जरूरत है, किसके घर में एक भी वसाइल के लिए नौकरी नहीं है, बार बनता है आपके लिए, उसके अंदर इक्विपमेंट लगता है आपके लिए, 10 लोफर घुस जाते हैं, तोड़ देते हैं उसको। वो जो 100 बंदा वहां खड़ा है वो उनको रोकता नहीं है, क्योंकि आप ओन नहीं कर रहे। कोई मेरे घर में तो घुस के आए तोड़े, हरियाणा बांधी साहब यहाँ पे घर में घुसता है तोड़ने के लिए नहीं घुसता ना, आपकी गली की लाइट तोड़ता है, आपकी मस्जिद की टूटी चोरी कर जाता है, आपकी जमीन से टूटियां ले जाता है, लेकिन आप उसको घर नहीं समझ रहे, इसलिए वो हरकत कर रहा है। अगर आप घर समझेंगे वो कभी भी ये हरकत नहीं कर सकता। क्या मैं अल्लाह को जवाब नहीं दूंगा कि ठीक है मैंने घर में तो पाल रखा हुआ था, तनख्वाह दे रहा था, लेकिन मैं सिगरेट पीऊं, इधर पीऊं टोटा वहां फेंकूं, इधर पीऊं टोटा वहां फेंकूं, वो इंसाफ नहीं है क्या?
क्या वो क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारे हाथ थे, पाँव थे, एक्सरे पड़ी हुई थी, तुम एक बंदे के लिए इस तरह का काम क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो उसके लिए, तुम क्यों तकलीफ दे रहे हो मेरे इंसान को। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे यहाँ से ऐलान भी कर रहा हूँ कि कोई भी काम कहीं पर हो आप उसकी निशानदेही करें, और कोई आपको रोकता है आप उसे कहें हमें अली अमीन ने कहा है, आपको मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ। तो मैं भी अगर आपकी रिपोर्ट ठीक होगी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है आज तक इतने काम करने का, उसकी वजह ये थी कि आवाम की तरफ से मुझे फीडबैक है। जी खान में आज मैं चैलेंज करता हूँ कि अर्बन फ्लडिंग जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है पिछले 3 सालों से तारीख, आज ये खान वो शहर है कि सबसे कम अर्बन फ्लडिंग यहाँ पे हो रही है, आपका पानी निकल रहा है। देखे वो बड़े बड़े उन इलाकों को जिनके अंदर एक प्लाट 6-6 करोड़ रुपए का है और उनकी गाड़ियां डूबी हुई हैं, उनके घर डूबे हुए हैं आधे आधे। हमारे 2-3 पॉइंट है जो भी डूब रहे हैं घंटे डेढ़ के लिए, उनकी निकासी के नाले भी बन रहे हैं। जब वो बन जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी अर्बन फ्लडिंग के बाद बिल्कुल ये मसला भी हल हो जाएगा। कुछ भी अल्लाह ताला की फजल करने का सोचता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, क्योंकि वो आपकी नीयत को देखता है। कोई यहाँ बैठा हुआ शख्स किसी बंदे को सरकारी नौकरी दिला सकता है अगर वो दिल से सोच ले के यार मैं इस नौकरी के बाद में बड़ा हकदार है, वसीला शायद मैं बनूं, केसी साहब बन जाए, एडी साहब बन जाए, एजी साहब बन जाए, कोई भी बन सकता है। लेकिन अगर आपने सोच लिया, अल्लाह ताला ने आपकी सोच के ऊपर नियत पे यकीन कर लिया कि आपकी नियत साफ और सच्ची है, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।